Hello, it's me. And I will be talking something about fun because it is the sixth episode of the Funny Podcast. And something that I say when it comes about fun is some time that I've spent, or you might also resonate with it. You might also think about it that yes, fun has a certain time period which is defining. Not every day is fun unless you are a comedian. But now even that's not true. No comedian is happy when they have an FIR against them. So I don't think that again implies there. But yeah, when we talk about fun, some people will say that it was their college life. College life में क्या मचाया है. That is that particular aspect when you are machawing in your life. That is what you call your fun times. तो वो कॉलेज टाइम में मचाया है. कुछ लोग बोलते हैं कि I love the way my organization works. No, not everyone works at Zappos. For our Indian audience, not everyone works at Oyo. But yeah, कुछ लोगों का होता है ऑफिस में भी मज़ा हो जाता है. But there are some people who will obviously say that school time was the most fun they've had. Because I don't know why स्कूल टाइम में एक अलग लेवल का जुवेनाइल और नालायकी होती है, जो कि जुवेनाइल इफेक्ट और नालायकी होती है, जिसमें कि अलग ही मज़ा आता है. एंड आई डोंट नो व्हाट आई मीन, दीवार में क्रैक पड़ गई और उसको टेप से चिपका देना थिंकिंग कि इट वर्क्स, दैट काइंड ऑफ फन इज़ अनमैच्ड. सो मेरे टाइम में भी यही था. आई थिंक द मोस्ट फन टाइम ऑफ माई लाइफ वॉज माई स्कूल. मैंने अपने स्कूल में बहुत मज़े किए हैं, whether it was because I have changed school a lot. So every school there was some different aspect of fun. किसी स्कूल में दीवार लांगना was fun. किसी स्कूल में I don't know, लड़की छेड़ना was fun back then. But वो लड़की छेड़ने का भी अलग ही फ़ायदा होता है, क्योंकि that is again juvenile. उसमें एक sense of innocence होती है. And in school, because I know now from my profession that आजकल स्कूल में जो फन होता है स्पेशली लड़कों के लिए, that is not correct. It's not right. It's there. The innocence factor nowadays is a little less as it was previously. But when we used to have fun, I mean, कैंटीन से चॉकलेट चोरी करना was fun. As an adult, I see it as kleptomania. As a child, I see that, oh, thrill, adrenaline rush. Oh, I am Hrithik Roshan from Dhoom. Minus the mask, which means I am Amir Khan from Dhoom. But we all know कि Dhoom 3 fail हुई थी. But मैं fail नहीं हुआ था. So yeah, school time was very fun, and most of it is because of the people you hang out with. You have a lot of friends in school. Lot is not an overstatement. It is actually true. You befriend anyone. A lot of people have a lot of friends, and because of that innocence factor that I was talking about, वो कभी fade out नहीं होता. The exception for that is a little less. मेरे भी बहुत दोस्त हैं, but I would like to say कि not everyone is in touch with me, or I am in touch with them. So yeah, the fake friends were 50%, but the fun remained 100. And another important aspect for me was PTMs. स्कूल में PTM होता था तो घर पे या तो ना बताएं, और अगर बताएं तो उसमें भी अलग फन आता है. मेरे केस में तो आया था. And that was when my papa used to come for the PTMs. So a little context: for a successful banker, his arithmetic progression was specifically weak for me. मतलब मैं 1999 में 3 साल का था, बट 1999 में अगर मैं 3 साल का था तो 2000 में मेरी एज क्या है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेंबर. एंड आई से दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विटनेसिंग अ लॉट ऑफ पीपल. ये एक बहुत ही, इट्स नॉट दैट अनकॉमन. अ लॉट ऑफ पीपल हैव
seen this. A lot of people have seen that yes, their dads don't remember what is their age. And this used to actually happen with me when it comes to PTM, because PTM is when that was the only time my father actually acknowledged my existence कि हाँ ये भी घर पे पड़ा है. He would remember कि हाँ कितने महीनों से विस्की की बोतल खुली नहीं है, but he would not remember my age. And he never knew this. तो जब भी मैं, अगर तुम पूछोगे कि हाँ अगर किसी फॉर्म में भरवाना होगा कि इसकी एज क्या है, तो ही विल गो कि हाँ इसको हॉस्पिटल से 1996 में लाया था, इतने हजार का बिल फटका था. बट ये सिर्फ फॉर्म में होगा. अगर आउट ऑफ द ब्लू एक पॉप क्विज हो गया एंड यू आस्क्ड हिम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टुनीशिया, हु एक्चुअली सेड this on a particular day, he will remember that. But will he remember what is my age? Ask him, he won't be. He will stutter, he will start calculating. There will never be a spontaneous answer. नहीं होगा, कभी नहीं होगा. And I have seen this time and again. I think even now he does not remember my age if I ask him out of the blue. बट PTM में ऐसा होता था कि PTM में जाने से पहले ही ऑलवेज नीडेड अ प्रेपरेशन. सो PTM होता था उस दिन स्कूल की छुट्टी, क्योंकि घंटा ही क्लास होगी ना, सारे टीचर्स को एक एक क्लास पकड़ा देते हैं. कुछ टीचर्स को 2 क्लास पकड़ाया गया था क्योंकि एक टीचर ने बीच में ही जॉब छोड़ दिया था. सो इस बीच में यू यूजुअली डोंट गेट दैट टाइम कि हाँ क्लास ले लें. तो स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, घर जाके इसके यूनिफॉर्म फट क्यों ना जाए, लेकिन हमें इसको यूनिफॉर्म में ही चाहिए स्कूल में. सो पापा, मैं, एक पुरानी मारुति 800 स्कूल की तरफ जा रहे हैं. स्कूल जाने से पहले 4 क्वेश्चन पूछेंगे. पहला, तूने कुछ गड़बड़ की है? जिसका आंसर आप ऑब्वियसली बोलोगे नहीं, जबकि आपने पंखा तोड़ा था पिछले हफ्ते. दूसरा, कौन सी क्लास में है? ओके. तीसरा, कौन सा टीचर है? हु इज़ योर क्लास टीचर? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक कि अगर कोई नया टीचर आया और उन्हें हमारा क्लास टीचर बना दिया, नाइट टेल देम कि ये नाम है. इट्स नॉट लाइक कि उस ज़माने में तुम्हारे आंखों के सामने वो ब्लैक मिरर जैसे पूरा प्रोफाइल सामने आ जाएगा कि हाँ ये बंदा यहाँ से पढ़ के आया है, ये क्लास टीचर है. एंड यू कांट क्रिएट एन ऑटोमेटिक कॉमराडरी उस 15 मिनट की कार राइड में. तो पूछते क्यों? जाओ मिलो, पता करो. दैट इज़ ऑल्सो माई फॉल्ट, क्योंकि मैंने पिछले 5 PTM में उनको बुलाया नहीं था. बट हाँ, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, तेरी एज क्या है? आई मीन इट्स नॉट लाइक कि दे आर गोइंग टू फिल अ फॉर्म और वहाँ पे आधार का एनरोलमेंट हो रहा है कि हाँ तुम एज बताओगे तो कोई मतलब बनेगा. बट एज पूछते हैं जस्ट टू बी श्योर. तो ना उनको क्लास याद रहता है आउट ऑफ द ब्लू, ना उनको एज. किसी दोस्त ने पूछ लिया कि कौन सी क्लास में लड़का, इट्स लाइक कि हाँ अभी कौन सी क्लास में, तो हाँ ओके 6th में है ये, हाँ ओके 6th में है ऐसे. हाँ तो आगे क्या करना है? आगे तो ये डॉक्टर ही बनेगा. क्यों? क्योंकि बहन तो मेरे को ये तो याद नहीं है कि ये क्लास में कौन से हैं, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने जब इसके पैदा होने पे सोचा था कि इसको डॉक्टर बनाना है, तब डॉक्टर बनाना है. इफ ओनली 6वीं क्लास का मी न्यू व्हाट द वर्ड एप्टीट्यूड वाज, I could have told him. And this is something that happened. तो मैं वहाँ जाता था, मेरी कंप्लेन होती थी. He used to think गाड़ी में तो इसने उल्टा बोला था. So he was very happy thinking कि हाँ मैं जाऊँगा, मेरे को तारीफ सुनने मिलेगा. हालांकि वो subtle modesty कि नहीं नहीं ये सब आपका ही काम है. And then out of the blue shatter होता है सब कुछ, पूरा इमेज शैटर हो जाता है. फॉर हिम ही हैज़ मेड अ 6 feet लॉन्ग पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ, ऑयल पेंटिंग वाला, कि हाँ मैं, मेरे घर पे ये टंगना चाहिए फॉर बीइंग द बेस्ट डैड. अब हिंदी न्यूज़पेपर, लोकल हिंदी न्यूज़पेपर में मिसिंग, गुमशुदा वाला जो सेक्शन होता है, वहाँ पे भी फ़ोटो लगाने लायक मैंने इनको नहीं छोड़ा. सो जब मैं अपना फ़न लेता हूँ इन चीज़ों में कि हाँ जो सेल्फ इमेज बना के रखा था आपने मेरे से पूछ के, वो शैटर हो रहा है, घर जाके मेरी रीढ़ की हड्डी शैटर होती है. एंड टीचर्स ऑल्सो हैव देयर ओन फन. दे नो कि हाँ मैं जिन जिन की कंप्लेन करूँगी वो, या फिर करूँगा, वो अगले दिन नहीं आने वाले स्कूल में, क्योंकि उनको पता है कि ये पिट चुके हैं. सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जिनकी कुछ टीचर्स इतने अच्छे होते हैं कि जिनकी अटेंडेंस अच्छी है
लेकिन वो है हरामजादे, उन बच्चों की कम कंप्लेन करते हैं ताकि अगले दिन की अटेंडेंस ना खराब हो। या फिर वो बच्चे जिनकी अटेंडेंस वीक है और वो 50% के नीचे जा रहे हैं, कुछ को दया वहाँ आती है कि हाँ इसकी कंप्लेन नहीं करते और इसको पिटवाते नहीं है, जस्ट सो दैट इसकी अटेंडेंस हो जाए, ताकि इसका पेपर हो, ये रिजल्ट में फेल हो और फिर पिटाई हो। तो ये सस्टेनेंस जो तुम मेंटेन कर रहे हो टीचर, उसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड ये पीटीएम वाली बात ना, ये अभी भी बहुत अखरती है मुझे कि हाँ मेरे पापा को मेरा क्लास याद नहीं रहता था। आई थिंक 11-12 से पहले उनको याद था भी नहीं। 11-12 में जब मैंने बायो लिया और उन्होंने बड़े बड़े चेक काटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तब शायद उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये इस क्लास में अब मेरे को याद रखना है। छोटे क्लास में ट्यूशन नहीं था तो फिर क्या मतलब। और ट्यूशन अगर होता भी था 8, 9, 10th में तो फिर इतना बड़ा चेक नहीं कटता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एक इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जब चेक लेता है तो फिर तब रियलाइज होता है कि हाँ बेंचो इसके पैसे में तो इसके में तो इतना जा रहा है, इसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। दैट इज़ दी अंडरस्टैंडिंग। तो तब याद रहता है। बट क्योंकि इतने साल तक नहीं रहा तो कहीं ना कहीं तो आपको वो लक्षण दिखेगा। और आज भी टुडे ऑल्सो इट वर्क्स ऑन द सेम मैनर कि ही नोज दैट आई एम अ पीजी, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने पढ़ाई कर ली है। और आज आई डोंट वांट टू साउंड ब्रैगी बट आई अर्न डिसेंटली। इट्स जस्ट बिन 1 year सिंस आई एम अर्निंग, बट हाँ उनको पता है कि अभी इसने काम शुरू कर लिया, ही इज़ वर्किंग समवेयर एंड ही स्टेज अवे फ्रॉम होम। ये सब चीज़ें उनको याद है, बट उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ काम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम पूछ लो, वो चीज़ शायद उनको कैलकुलेट करने के बाद भी नहीं पता चलेगी। या फिर मैं करता क्या हूँ एग्जैक्टली, माई जॉब डिस्क्रिप्शन, वो उनको घंटा याद नहीं रहने वाला, क्योंकि मैंने उनको शुरुआत में बोला होगा। आज ये ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग फॉर द पास्ट 1 year, उनको अब याद नहीं है। अगर मैं ढूंढूंगा, क्योंकि हम ज़्यादा बात कॉल पे ही कर पाते हैं, टेक्स्ट हैवी इतने हैं नहीं जो टेक्स्ट करेंगे हर चीज़ को, तो ही विल गेट रियली फ्लैबरगास्टेड थिंकिंग कि ओ यार ये वैसे करता क्या। क्योंकि बात तो इसी होती है ना उनके दोस्तों के साथ कि हाँ अभी लड़का क्या कर रहा है, बोला कि हाँ वो काम कर रहा है कहीं पे। सामने वाला भी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पूछा होगा कि हाँ क्या काम कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। लाइक इसने साइकोलॉजी में पढ़ाई की थी एंड ही इज नाउ वर्किंग। लाइक तो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी, वो सोचेंगे अरे लड़का आपका डॉक्टर बन गया, क्या बात है। बट नहीं है ये सच्चाई, मैं नहीं हूँ डॉक्टर। and still he won't be able to answer. Thank you so much for listening. That was all for today. If you enjoyed this, if you liked this, please do hit like, put it to your favorites on Spotify. We are on other podcasting platforms, so now you can follow us there if you want. Breaker, Public Radio, Radio Public, or something like that. I don't know. Anchor FM does it, so I don't get to understand what exactly is my outreach. But yeah, but if you're on YouTube, then please hit like, share, subscribe, and definitely leave a comment, because जब आप लोग लगातार I get 1 comment in the previous post, सामने वाला देख के सोच रहा होगा कि अरे ये तो खुद ही कर रहा है, and I don't want another Sunil Pal incident in my life. Thank you so much. I'll be back soon. Bye bye.